Hello, good morning, all. Good morning, ma'am. Okay. So कल वाला न्यूमेरिकल किया फिर आपने? मैंने अब आपको दिया था ना सर्कुलर सेक्शन वाला, एक रेशियो दिया था सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम के बीच में। तो वो न्यूमेरिकल किया आप लोगों ने? किसी ने नहीं किया? विराज, तू बीबी सवानी के आईडी से नहीं ज्वाइन कर रहा है, किसी और आईडी से कर रहा है? हाँ हेलो बोल। मैडम, कल प्रॉब्लम आ रहा था। कल पीपी नहीं, सवानी के अभी भी आईडी ऐसे से ही कल हुआ भी यही प्रॉब्लम था। पता नहीं हाँ तेरे मैडम, लिए ही परमिशन नहीं मांग रहे हैं। मैडम, अ- अब कल मैं ट्राई किया अदरवाइज था सब ऐसे कल ही मुझे। ज्वाइन हो जाते। हाँ मैडम, मतलब वो तू कल बीबी मैंने सवानी से नहीं कल कर से रहा है? नहीं मैडम, मैडम मैंने खुद की अच्छा। आईडी से किया। हाँ तो कल भी खुद था। हाँ हाँ। नहीं, अगर वो पीपी ऐसा सोनी की बोलते हैं। आईडी से करते हो तो फिर ऐसे ही ज्वाइन हो जाते हो। हाँ मैडम, बोलते हैं कॉन्टेक्ट ओके, डोमेन। ठीक अभी है। कहाँ डोमेन करना जाए। ओके, तो कल वाला न्यूमेरिकल किसने किया? किसी ने नहीं किया? कल अभिन एब्सेंट था, इसलिए अभिन होता है तो अभिन करता है सिर्फ, बस, और कोई नहीं करता है। चलो, सब लोग वीडियो पहले ऑन करो। अंकित न्यूमेरिकल नहीं कर रहा है, फिर बोलेगा मुझे ये चैप्टर में भी समझ नहीं आया। अब खुद से नहीं करोगे तो कैसे समझ आएगा? मैं ही सब हर एक न्यूमेरिकल मैं ही करवाऊंगी तो फिर कैसे चलेगा? आपको खुद को तो कुछ करना होगा ना। और ये चैप्टर के न्यूमेरिकल तो एकदम इजी है, सिर्फ इक्वेशन में ही वैल्यू रखनी है। ओके। This was our numerical, that is the line of thrust in a compression tensile specimen 50 mm diameter. Okay, means के आपको यहाँ B और D नहीं दिया है. Okay, instead of that you have a diameter because your specimen is a circular, that's why diameter is given, right? The 15 mm diameter is parallel to the axis of the specimen but is displaced from it. Calculate the distance of the line of thrust from the axis when the maximum stress is 20% greater than the minimum stress. Okay, so here it is a relationship between maximum stress and minimum stress. Our maximum stress is sigma max, our minimum stress is sigma minimum. Okay, so sorry, here it is a relationship between maximum stress and mean stress. Okay, आपको क्या दिया है? when the maximum stress is 20% greater than the mean stress. Okay, mean stress मतलब क्या होता है? What is mean stress? हाँ, what is mean stress? Mean stress मतलब direct stress. Okay, that is a P by A. Okay, here you have diameter, you have load दिया है. Hmm. नो। No, load is not given. Okay, so load नहीं दिया है, right? So you have you have just a relationship between maximum stress and mean stress. You have a diameter and you have to find eccentricity. Okay, calculate the distance. Distance मतलब what? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये आपकी जो लाइन ऑफ द थ्रस्ट, दिस इज द लाइन ऑफ द थ्रस्ट एंड
and from the axis, this is your axis and this is the line of the thrust. मतलब लोड थ्रस्ट जहां पे अप्लाई हो रहा है, लोड जहां पे अप्लाई हो रहा है, that is your line of the thrust, right? And axis, okay, your middle axis, central axis, neutral axis, whatever it is, okay? So आपको एक्सिस से लाइन ऑफ थ्रस्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है, ओके? आपको लोड नहीं दिया है, but you have a diameter. From diameter you can able to find the area, right? You have a diameter that is equal to 15 mm, okay? So from diameter we can find the area that is equal to pi by 4 d square, right? So my area is equal to this. Now what is the relation? That is the sigma max is equal to 20% greater than mean, okay? So सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू 20 को अगर मैं परसेंटेज हटाती हूँ, ओके, तो दैट इज इक्वल टू 1.2, राइट? तो दैट इज इक्वल टू 1.2 into mean stress, right? Into mean stress. What is a mean stress? Mean stress that I told you, that is equal to load by area, right? area. Mean stress is equal to what? That is equal to load by area. But you don't have any load, right? आपके पास लोड नहीं है, ओके? आपको लोड नहीं दिया है, ओके? सो योर मीन स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू लोड बाय एरिया, ओके? आई डोंट हैव एनी लोड, सो इंस्टेड ऑफ लोड, let's say we are writing P, okay? Let's say P is equal to load, right? तो हमने एक नोटेशन लिया, दैट इज इक्वल टू P लोड का, और एरिया वी ऑलरेडी हैव एरिया, ओके? वी ऑलरेडी कैलकुलेट द एरिया, सो दैट इज इक्वल टू P बाय A, ओके? सो यहाँ पे मुझे एक P के फॉर्म में मिला है एक आंसर, ओके? नाउ all of you know what is moment is equal to? Moment is equal to load into perpendicular distance. Here my perpendicular distance is eccentricity, my load is P, okay? So here this is our bending equation जो हमने कल किया था, my by I is equal to sigma b by y, okay? तो what is my bending stress? यहाँ पे मुझे मिला है mean stress, right? Mean stress, okay? What is my bending stress? That is equal to my by into y, m by I into y, okay? That is my bending stress, okay? Now all of you know for the circular section, okay, your x bar is equal to your y bar, okay? That is equal to d by 2, okay? Rectangular section में क्या होता है? y bar is equal to what? That is equal to d by 2, x bar is equal to b by 2, right? But यहाँ पे here it is our circular section, so my y is equal to what? That is equal to d by 2, right? So now instead of y मैं क्या रखती हूँ? d by 2, मैं y की वैल्यू इंसर्ट करती हूँ, तो my sigma b is equal to m by I into d by 2, okay? Again हमने क्या किया? We have a relation between mean stress and maximum stress, okay? तो mean stress that is equal to P upon area, this is our mean stress. Now हमने sigma b में जो y का इक्वेशन है उसके अंदर d by 2 diameter by 2 हमने सिर्फ वैल्यू इंसर्ट की है, right? Now okay, again insert a value of moment of inertia. What is the moment of inertia for circular section? सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? दैट इज इक्वल टू पाई बाय 64 d4, ओके? अगेन आपको ट्राइंगल का उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन याद नहीं है, देन इट इज ओके, बट आपको रेक्टेंगल और सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है फॉर हॉलो एज वेल एज फॉर दी सॉलिड सेक्शन, ओके? दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रखना होगा, बिकॉज इस न्यूमेरिकल में आपको जरूर पड़ेगी, ओके? सो इंसर्ट द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंसर्ट द वैल्यू ऑफ y, ओके? सो मुझे ये एक इक्वेशन मिला, ओके? ये एक इक्वेशन के फॉर्म में. नाउ अगेन सिग्मा 0 इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू माय मीन स्ट्रेस, राइट? So that is equal to P upon this, that is equal to load by area, while my area is equal to this. Now what is sigma max? That all of we know, that is sigma max is equal to sigma 0 plus sigma b, right? sigma max क्या होता है? sigma max is equal to sigma 0 plus sigma b. sigma 0 क्या आया हमारा? ये आया. sigma b क्या आया? ये आया. तो insert the value of sigma 0 plus sigma b.
समझ आ रहा है हमने क्या किया है? हमने क्या किया है, पहले वी डोंट हैव एनी वैल्यू, तो हमने क्या किया, हम लोगों ने जो हमारे पास जो पैरामीटर्स है सिर्फ उन्हीं को इंसर्ट किया है, राइट? तो फर्स्ट वी फाउंड आउट द मीन स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू सिग्मा जीरो, बिकॉज हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, हमें सिग्मा मैक्स का इक्वेशन चाहिए, राइट? तो सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी। नाउ व्हाट इज सिग्मा नॉट, दैट इज इक्वल टू मीन स्ट्रेस, उसे मीन स्ट्रेस भी बोलते हैं, राइट? हम लोग उसे डायरेक्ट स्ट्रेस और मीन स्ट्रेस व्हाटएवर इट इज, ओके, हम लोग उसको डायरेक्ट स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, उसे मीन स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड बाय एरिया, दैट इज इक्वल टू पी बाय ए, बट हमारे पास पी की वैल्यू नहीं है, तो हमने क्या किया, पी को एज इट इज रख दिया और ए की जगह पे हमें, बट वी हैव अ डायामीटर, दैट्स व्हाई हमें एरिया मिल गया, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर, ओके, तो दैट इज इक्वल टू सिग्मा जीरो, ओके, सिग्मा जीरो हमें मिला यहाँ पे P by 176.714 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके। नाउ सिग्मा मैक्स के लिए और कौन सा पैरामीटर चाहिए, दैट इज इक्वल टू सिग्मा बी अगेन, ओके। नाउ सिग्मा बी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा बी इज इक्वल टू m बाय i इंटू वाई। अब इस इक्वेशन में मैं क्या करती हूँ, m इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू लोड इंटू डिस्टेंस, i इज इक्वल टू पाई बाय 64 d4 और y इज इक्वल टू d बाई 2, मतलब मैं इन तीनों की वैल्यू इंसर्ट करती हूँ। m इज इक्वल टू माई बेंडिंग मोमेंट क्या होती है, लोड इंटू डिस्टेंस, ओके। I इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया and moment of inertia for circular section, okay, that is equal to pi by 64 d4. Now what is y यहाँ पे, here it is my circular section, so my x bar is equal to y bar is equal to क्या आएगा, diameter divided by 2, okay। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, m I और y तीनों की वैल्यू इंसर्ट कर रही हूँ और फिर मुझे जो मिलता है दैट इज इक्वल टू माई सिग्मा बी, ओके। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू इंसर्ट की, तो मेरा जो सिग्मा बी है उसका सिग्मा बी का ये इस तरह का मुझे इक्वेशन मिला, राइट? यहाँ पे मैंने क्या किया, m की जगह पे p इंटू ई रखा, i की जगह पे पाई बाय 64 d4 रखा, y की जगह पे d बाई 2 रखा, ओके। तो मुझे I can get this kind of the equation, okay, that is equal to 32 p into e. What is p into e? That is equal to moment, okay। यहाँ पे जो है मेरी moment, okay, और यहाँ पे मेरा d4 में से d जाएगा, ये 2 है, यहाँ से जाएगा, मतलब ये 32 होगा, okay। तो I can get this kind of the equation that is equal to 32 p into e pi d cube. Now what is sigma max? Sigma max is equal to what? Sigma max is equal to sigma 0 plus sigma b, okay। Maximum stress is equal to direct stress, this is not into, this is plus, okay। मैक्सिमम इज इक्वल टू, यहाँ पे बुक में गलती है, ओके। तो मैक्सिमम स्ट्रेस इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, राइट? What is my direct stress? That is equal to sigma. It is denoted by sigma 0, right? What is my bending stress? Bending stress is denoted by sigma b. Now what is the value of direct stress? यहाँ पे एक p के फॉर्म में मुझे एक इक्वेशन मिला, ओके, यहाँ पे। Now what is the value of my bending stress? जो यहाँ पे मैंने फाइंड किया वो भी एक इक्वेशन के फॉर्म में ही मिली है। तो यहाँ पे मुझे सिग्मा 0 और सिग्मा बी की वैल्यू इंसर्ट करना है। नाउ but sigma max is equal to what? That is equal to 1.2 sigma mean, ओके। तो इसके जगह पे यहाँ पे मैं इसके जगह पे 1.2 p by this लिख सकती हूँ, समझ आ रहा है? हेलो? Yes, ma'am. Okay, because Yes, madam. yes, so my sigma max is equal to what? It is already given, okay। आपको न्यूमेरिकल में दिया है कि your mean stress is 20% greater than your maximum stress, okay। so मैं यहाँ पे ये जो मेरा सिग्मा मैक्स है, okay, उसकी जगह पे 1.2 into mean stress that is equal to this, okay। this is my mean stress because my mean stress is equal to my direct stress that is equal to p by a, okay। so हम क्या करते हैं, दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ओके। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2, दिस वन इज माय इक्वेशन नंबर 1, ओके। सो इक्वेटिंग बोथ ऑफ दिस इक्वेशन, मैं क्या कर रही हूँ, इस इक्वेशन को, फर्स्ट नंबर वाले इक्वेशन को और सेकंड नंबर वाले इक्वेशन को कंपेयर कर रही हूँ, इक्वेट कर रही हूँ, ओके। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो अब ये कैलकुलेशन करोगे तो फाइनली यू कैन फाइंड योर ई, दैट इज इक्वल टू योर एसेंट्रिसिटी एंड दैट इज इक्वल टू 0.375 mm, राइट? चलो खुद से करो।
क्या करना है पहले क्या करना है, आपके पास एक एरिया रिलेशन है, निकालना है। ओके। पहले सबसे पहले यस, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द एरिया, you already have diameter, then find out the area. Now you have this relation, sigma max is equal to 20% greater than mean, okay. So that is equal to 1.2 mean, right? Sigma max is equal to 1.2 mean. उसके बाद क्या करना है, सिग्मा जीरो, बिकॉज सिग्मा मैक्स के लिए आपको क्या चाहिए, सिग्मा जीरो सिग्मा बी। सिग्मा जीरो क्या होता है, P बाई ए। सिग्मा बी क्या होता है, सिग्मा बी इज इक्वल टू एम बाई आई इंटू वाई। अब उसमें हम क्या करेंगे, एम आई और वाई तीन की वैल्यू इंसर्ट करेंगे, और जो आता है आपको एक इक्वेशन मिलेगा पाई। अगर आप पाई की वैल्यू रख दे तो देन ऑल्सो इट इज ओके, ओके। पाई की वैल्यू रख के अब अगर आप कैलकुलेशन करते हो देन ऑल्सो इट इज ओके, ओके। आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर में पाई की वैल्यू इंसर्ट करोगे तो आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। यहाँ पे ये जो इनका फॉर्मूला है दैट इज इन पाई, ये पाई के फॉर्म में है, ओके। अगर आप पाई की वैल्यू रख देते हो फिर भी वो ठीक रहेगा, ठीक है। अगर नहीं रखते हो देन ऑल्सो इट इज ओके, ओके। तो चलो करो, तो पहले सिग्मा मैक्स और सिग्मा मीन का रिलेशन, उसके बाद सिग्मा जीरो फाइंड करो, उसके बाद सिग्मा बी जो भी पैरामीटर से वो इंसर्ट करो, इक्वेशन के फॉर्म में लाओ, फिर सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा जीरो प्लस सिग्मा बी। अब सिग्मा मैक्स है आपके पास, दैट इज इक्वल टू 1.2 इंटू सिग्मा इंटू मीन, ओके। तो 1 और 2 इक्वेशन को कंपेयर करो और आपको ये मिल जाएगा, कैलकुलेट बाय योरसेल्फ, राइट। मैडम हाँ, मैडम वहाँ पे है ना, पाई 3.14 लेना है, 22/7 लेना है। 3. देख तेरे कैलसी के अंदर डायरेक्ट पाई भी है, कैलसी यूज कर रहे हो आप लोग या मोबाइल में ही करते हो? कैलकुलेटर में पाई की वैल्यू दी है 3.14 लेगा, उससे कहता डायरेक्ट जो पाई है ना वही ले ले कैलकुलेटर में। 3.14 लिया ना, तो पॉइंट के बाद 625 आया, और यहाँ पे 7.4 आ रहा है। हाँ कोई नहीं, चलेगा, चलेगा ना वो जो वैल्यू? भी आएगा, हाँ थोड़ा बहुत चल जाएगा, कोई नहीं। ओके मैडम। और कैल्सी से कर रहे हो ना तो उसमें पाई दिया ही होता है, आप सिर्फ पाई प्रेस करोगे ना तो वो पाई की वैल्यू ले लेगा। मैडम किधर है? देखना शायद लास्ट रो में होगा, आई गेस, पता ना नहीं, मैडम, याद नहीं है होता है। आंसर के लिए EXP वाला दबा है, स्पीड दबा के। हाँ EXP वाला। अगर कुछ नहीं है आपके कैलकुलेटर में तो 3.14 ले लो, लेकिन होता ही आएगा मुझे लगता है वहां तक तो। मैडम ये देखो, एक लॉग है। मिनट, लास्ट रो देखनी है। ना मैडम नहीं है। शिफ्ट हाँ, करके देख, यूज करना होता है। हाँ मैडम मिला शिफ्ट करके होगा, देख शिफ्ट दबा और EXP दबा। हाँ येलो कलर में होगा देख, हाँ तो मैडम, शिफ्ट मिला करके, मिला मिला। हाँ तो डायरेक्ट तुझे पाई की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। हाँ हाँ, मिला मिला मैडम। हाँ बाकी के लोगों ने क्यों कैमरा ऑन ऑफ रखा है? सुदीप्तो सिंह, अंकित, आशुतोष, धीरेन, મેમ બોલો। નેટવર્ક ફ્લક્ચ્યુએશન બહુ વધારે છે, કેમેરો લોડ લે છે નેટનો, એટલે વારે બે વખત ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયો છું. સારું ચાલ કઈ ઓફ કરી દે, પણ ન્યુમેરિકલ કરજે, હું આન્સર પૂછીશ તને। હા સિદ્ધાર્થ કરે છે તું? શું આવ્યો આન્સર? મેડમ આવે છે મેડમ, કરું છું શું આવે છે એ તો પૂછું છું। મેડમ। શું એક ફાઇન્ડ આવા કર્યું દો પહેલા? મેમ, શું ફાઇન્ડ ડાયામીટર। કર્યું? ડાયામીટર તો આપેલું જ છે, ફાઇન્ડ ક્યાં કરવાનું છે? હા, એટલે એને લઈને મેડમ શોધવાનું છે ને બધું બધું। શું શું શોધવાનું છે? બોલ।
મેડમ એ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. એ ફાઇન કરવાનું છે. હજુ તારો એરિયા જ નથી આવી રહ્યો. તેને પછી ન્યુમેરિકલ તું ક્યારે કરી રહીશ? એરિયા આપણે એસેન્ટ્રિસ. હેલો હા મેમ તમારો અવાજ બહુ કપાય છે આજે. હેલો હા બોલ. મેમ તમારો આજે અવાજ બહુ કપાય છે. સારું ચાલ તું ન્યુમેરિકલ કર. ધીરેન તું ન્યુમેરિકલ કરે છે? તારું રોજ જ ઓફ હોય છે કેમ? करे छे न्यूमेरिकल? ओके इसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी. सुदीप्ता कर रहा है तू? विवेक, सुदीप्ता. हाँ मैम. यस मैम. हाँ तो आप लोगों का कैमरा क्यों ऑन है, ऑफ है? चंदन आया आंसर? एक मिनट मैडम, बोल रहा है. ओके .37 0.37 थोड़ी 3.7 है. तेरा मीटर में आया? सॉरी सॉरी हाँ 0.37 है. mm. यस यस 0.3 0.375 mm. यस आया सभी का आंसर? विराज तेरा आंसर आया? हाँ मैडम कर रहा हूँ, कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ. ओके आप लोगों की एएसएम की लैब कब आती है? कॉलेज है मैम. काले से आज ही- काले तो आज. आज है या कल है? मैडम दोनों का अलग अलग मैकेनिकल वाले का अलग है. आज सिविल वालों का अलग होता है ना और मैकेनिकल का अलग. अच्छा अलग अलग टाइम है. हाँ यस. सिविल वालों की लैब कल है, तब मैकेनिकल वालों का कुछ है या फ्री है? काले में मैकेनिकल वाला है. ओके तो काले आज सिविल वालों का है मैडम. तो सिविल की लैब कितने बजे है? मैम 150 से. 150 से. 150 में मैकेनिकल वाला आप लोगों का क्या है? ट्यूटोरियल मैथ्स का. मैथ्स में लैब मैथ्स का Maths ट्यूटोरियल. और ले लो कल ना, ले लो. सिविल आपका क्या है? हमारा मैम केवल सर का है, सर्वेइंग का लैब. सर्विंग में सर क्या कराते हैं?
मैम वो प्रैक्टिकल दे देते हैं, हम लोग परफॉर्म करते हैं, फिर बाद में हमसे आंसर कैलकुलेशन होता है। कैसे परफॉर्म करते हो, घर पे सर्विंग? यस मैम, वो वर्चुअल लैब करके आता है ना, वो ऑनलाइन सर लिंक दे देते हैं, अच्छा, तो फिर वहां से प्रैक्टिकल परफॉर्म करके रीडिंग ले लेते हैं हम लोग। ओके। तो मैं ऐसे आज आज तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीक में ना वेडनेसडे ही ऐसे होगा तो कर लेंगे आप लोगों का जो बेंडिंग स्ट्रेस वाला है ना चैप्टर, उसका एमसीक्यू टेस्ट, क्योंकि कल तो आप लोगों नहीं कर पाओगे ना, तो नेक्स्ट वीक रखते हैं, ठीक है? मैम मैम लेने नेक्स्ट पेज करो तो जरा, नेक्स्ट पेज। लेने से पहले आना सर। तो नेक्स्ट वीक वेडनेसडे मैं केवल सर से बात कर लूंगी, एक लैब ऐसा होगा तो हम ले लेंगे, और आप लोगों का ट्यूटोरियल मैं आपको कल इन्फॉर्म करती हूँ, चलो ना, केवल सर से बात करने के बाद। करना बेंडिंग स्ट्रेस। मैडम कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का होगा, उसको 30 में कन्वर्ट कर देंगे, और उसका जो एवरेज होगा ना, सभी 6 चैप्टर है हमारे, तो 6 चैप्टर का जो भी आपका होगा, वो आपके इंटरनल एग्जाम के मार्क्स काउंट हो गए। हो गया, अभी किसका आंसर बाकी है? मैम मेरा 1 मिनट रुको। ओके, चल फटाफट फिनिश कर, फिर नेक्स्ट करते हैं। ओके, जिसका हो गया ये 9.5 वाला न्यूमेरिकल लिखो। A hollow rectangular column of external depth 1 meter and external width 0.8 meter is 10 centimeter thick. Calculate maximum and minimum stress. सिग्मा मैक्स सिग्मा मिनिमम फाइंड करना है, कुछ नहीं है, सिर्फ हॉलो सेक्शन है, मतलब एरिया आपका हॉलो सेक्शन का आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका हॉलो सेक्शन का आएगा, पूरी मेथड सेम है, सिर्फ सिग्मा मैक्स सिग्मा मिनिमम फाइंड करना है, एकदम इजी है। वर्टिकल लोड दिया है, एसेंट्रिसिटी दी है, राइट? सपोज आपको फिगर नहीं देते तो इस डेटा से आपसे फिगर ड्रॉ हो जाएगी ना, ट्राई करो, चलो उसके बाद में आपको फिगर दिखाती हूँ। सपोज मैं आपको एग्जाम में फिगर नहीं देती हूँ, राइट? 9.5 वाला न्यूमेरिकल लिखो, और इस जो डेटा है, आपको गिवन डेटा है, उससे आप फिगर ड्रॉ करो, ट्राई करो एटलीस्ट, फिर मैं आपको शो करती हूँ फिगर कैसी आती है वो।
ओके, फिगर ड्रॉ की मैं किसी भी एक से बोलूंगी, उसको बैक कैमरा ऑन करके मुझे फिगर शो करनी होगी। फिगर ड्रॉ करो और मैं किसी को भी बोलूंगी। आशुतोष बीमार हो गया? बीमार हो गया? यस मैडम, थोड़ा सा अभी सुबह सुबह ऊपर रहता है। हाँ तो ध्यान रखो। यस मैडम। विवेक, फिगर ड्रॉ हुई तेरी? मैम 1 सेकेंड बाकी है अभी। ओके, तो मुझे दिखानी है तुझे कैसे ड्रॉ की वो। कितनी देर होती है उसमें? बेंडिंग स्ट्रेस का ट्यूटोरियल सबमिट करो, उसके साथ साथ में बेंडिंग स्ट्रेस की क्लास नोट भी सबमिट करना है, ठीक है? क्लास नोट और ट्यूटोरियल 1 दोनों साथ में सबमिट करना है। सेम ये चैप्टर जब खत्म होगा तो ये चैप्टर का ट्यूटोरियल जब मैं दूंगी तब, और ये चैप्टर की क्लास नोट दोनों सबमिट करना है। मैम कब तक करनी है? लास्ट डेट दी है ना मैंने, ये 7 या 8 दी है, क्लासरूम में ओके दी है, ओके ड्यू डेट है। उससे पहले कर देना, उसके बाद करोगे तो 50% मार्क्स दूंगी। क्योंकि 10 डेज तो बहुत ज्यादा होते हैं। 11 न्यूमेरिकल है, रोज रोज का एक करोगे फिर भी हो जाएगा। सिद्धार्थ, फिगर ड्रॉ करी? યસ મેડમ કરું જ છું. અલ્લા તું જ્યારે બી પૂછું તું કરતો જ હોય, ક્યારે કરી રહી છે તું? મેડમ હવે આપણે એટલા મેડમ શું કહેવાય ઇન્ટેલિજન્ટ નહીં ને મેડમ હવે એટલે. ઓહો હો હો, એમાં શું ઇન્ટેલિજન્ટ નું કામ છે? ખાલી ડેટા પરથી તો ડ્રો કરવાનું છે. ओके, आपकी आएगी, ऐसी फिगर आएगी, राइट? यहाँ पे आपको इंटरनल और एक्सटर्नल नहीं दिया, बट आपको थिकनेस दी है। ओके, तो आपका एक्सटर्नल आपको मिल जाएगा, थिकनेस मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो देखो मैं आपको okay, what are the given values? You have B that is equal to 0.8 meter internal, okay, sorry, external B is equal to 0.8 meter, or external D depth is equal to 1 meter, right? Now your thickness is equal to 10 centimeter, okay? मतलब आपकी ये जो डायमेंशन है ना, ये दिस इज योर थिकनेस 10, तो ये आपको थिकनेस दी है। ओके, यू हैव एक्सटर्नल width, you have external dia. External dia is capital D that is equal to 100, or external width that is equal to 800, right? And you have thickness. Thickness मतलब क्या है कि आपका जो मटेरियल है उसकी इतना मतलब चौड़ा है, राइट? उसकी जो थिकनेस है दैट इज इक्वल टू 10 mm. ओके, तो आप क्या करोगे, दिस थिकनेस माइनस दिस थिकनेस। सो इफ यू वांट टू फाइंड इंटरनल बी मतलब स्मॉल बी, तो क्या करोगे आप, कैपिटल बी माइनस 2 टाइम थिकनेस, बिकॉज दिस हियर 1 टाइम, यहाँ एक 1 टाइम। ओके, तो कैपिटल बी माइनस 2 टाइम थिकनेस, सेम एज what is your small d that is equal to 600. capital D minus 2 time thickness. Okay, तो यहाँ पे these are your given values, right? You have capital B that is equal to 800 mm. You have capital D that is equal to 1000 mm. मैंने 100 बोल दिया था,
Okay, you have thickness that is equal to 10 centimeter. Okay, that is equal to 100 mm. So your small b is equal to b minus 2 times thickness, that is equal to 600 mm. Same as your small d is equal to d into 2 times thickness, that is equal to 800 mm. So अगर आपको इंटरनल डायमीटर अगर नहीं दिया होगा तो थिकनेस दी होगी, अगर थिकनेस नहीं होगी तो इंटरनल डायमेंशन दी होगी. ओके, हियर थिकनेस इज गिवन, सो आपको इंटरनल डायमेंशन मिल जाएंगे. बिकॉज आप लोग दोनों साइड से थिकनेस माइनस करोगे तो आपको बी मिल जाएगा, टॉप और बॉटम से थिकनेस माइनस करोगे तो आपको डी मिल जाएगा. राइट, सो ड्रॉ दिस फिगर. यहाँ पे आपकी फिगर है, ये आपका कॉलम है, ये आपकी लेंथ है, दिस इज योर लोड, दिस इज योर एसेंट्रिसिटी, और ये आपके जो डायमेंशन है. ओके, ये आपका टॉप व्यू है, ऊपर से आपका कॉलम ऐसे दिखता है. Here it is a hollow rectangle column. Okay, so draw this figure. नाउ अब न्यूमेरिकल एकदम इजी है. अब क्या करना है आपको, सिर्फ एरिया फाइंड करना है. रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, आप उल्टे से जाओ, आपको सिग्मा मैक्स फाइंड करना है. सपोज आपको सिग्मा मैक्स के लिए क्या चाहिएगा, एक तो सिग्मा जीरो और सिग्मा बी. सिग्मा जीरो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू पी बाय ए, मतलब लोड बाय एरिया. आपके पास लोड है, यस, it is a 200 kilonewton. Okay, load is there already given to you. Okay, so you have to find area, but you have to find area for the hollow rectangular section. वो क्या होगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर तो बाय सर्कुलर का होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, हाँ सर्कुलर का होता है पाई बाय 4 डी स्क्वायर. यहाँ पे तो आपका रेक्टेंगल सेक्शन है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बी इंटू डी. बट हियर इट इज अ होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन, तो होलो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, बड़ा में से बाइन छोटा, हाँ बड़े में से छोटा, हाँ यस, बड़े में से छोटा को माइनस कर देना है. दैट इज एरिया फॉर होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन. ओके, तो सिग्मा जीरो मिल गया, पी है, एरिया फाइंड कर लिया, तो पी बाई ए. अब आपको सिग्मा बी फाइंड करना है, तो सिग्मा बी के लिए आपको क्या चाहिए, सिग्मा बी इज इक्वल टू एम अपॉन आई इंटू वाई. ओके, एम क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट, दैट इज इक्वल टू लोड इंटू एसेंट्रिसिटी. यू हैव एसेंट्रिसिटी नहीं है. ओके, सो आप क्या करोगे फिर, नो सॉरी, एसेंट्रिसिटी है, आपको सिग्मा मैक्स फाइंड करना है. यस, मुझे लगा यहाँ पे हमें एसेंट्रिसिटी फाइंड करना है. ओके, तो एसेंट्रिसिटी है तो आपको एम मिल गया, दैट इज इक्वल टू लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, तो एम हो गया, दैट इज इक्वल टू 200 इंटू 15 सेंटीमीटर. एम मिल गया. आई क्या होगा, सेम, बड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैपिटल बी डी क्यूब बाई 12 माइनस स्मॉल बी डी क्यूब बाई 12. That is a moment of inertia for hollow rectangular section. Now what is y? Y is equal to outer, hollow में याद रखना, outer divided by 2. Okay, outer b divided by 2, that is equal to y. Okay, तो यहाँ पे है वो सभी आंसर. एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया m. Okay, एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया m, बेंडिंग मोमेंट, फिर है y, दैट इज इक्वल टू 400. 400 क्यों हुआ, बिकॉज आउटर इज 800, आउटर डेप्थ इज 800. समझ आ रहा है ना. हम बीम में क्या लेते थे, y बार क्या लेते थे, दैट इज इक्वल टू d बाई 2. यहाँ पे हमारा कॉलम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें क्या लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा होता है y एक्सिस पर. y एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, db क्यूब बाई 12.
ओके, बीम में क्या होता है, आपका लोड कहाँ अप्लाई होता है, एक्स एक्सिस पर, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस का लेते हैं, दैट इज इक्वल टू BD क्यूब बाय 12। बट हियर इट इज अ कॉलम, कॉलम कैसे लोड लेता है, वर्टिकली, बीम कैसे लोड लेता है, हॉरिजेंटली, पता है ना, कॉलम इज अ वर्टिकल मेंबर, दैट्स व्हाई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस पर आएगा, दैट इज इक्वल टू DB क्यूब बाय 12। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका D, कैपिटल D स्मॉल b क्यूब बाय 12, यहाँ पे स्मॉल डी कैपिटल स्मॉल बी क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ओके, और सेम आपको वाई बार भी क्या लेना है, एक्स एक्सिस पर, मतलब यहाँ पे आपका एक्स बार होगा। ओके, आपका जो एक्स डिस्टेंस है, आउटर एक्स डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 100। ओके, तो आपका वाई बार होगा 800 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 400। समझ आ रहा है हम लोग क्यों आई वाई वाई लेते हैं कॉलम में, बिकॉज यहाँ हमारा लोड यहाँ पे लग रहा है वर्टिकल एक्सिस पर, यहाँ पे इस एक्सिस पर या वर्टिकली लगेगा, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा मेंबर वर्टिकली कितना लोड कैरी कर रहा है वो हमें फाइंड करना है, दैट्स व्हाई हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्टिकल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू आई वाई वाई। हॉरिजेंटल होता है आई एक्स एक्स, जो हम बीम के लिए कैलकुलेट करते हैं। समझ आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस। सेम वाई बार भी आपको लेना पड़ेगा। आपकी वाई एक्सिस कौन से एक्सिस को कट कर रही है, कौन सा डायमेंशन, ये बी कट हो रहा है, तो आपका आएगा B/2। ओके, आप न्यूमेरिकल करो, मैं प्रेजेंट ले रही हूँ। सिविल 1 नंबर, Present. 2 नंबर, सिविल 3, प्रेजेंट मैम। ओके सिविल। अंकित न्यूमेरिकल कर रहे हो? यस मैम, पहला वाला का आंसर आया था। आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया, आई क्या आया? अभी मैम ये दूसरा वाला कर ही रहा हूँ मैम, अभी एरिया ही फाइंड कर रहा हूँ। ओके 4 अर्चना, 5 है नहीं, 6 नंबर सिविल, सिविल 5 है सुदीप्ता? पढ़ना में नहीं है, है है ओके, सिविल 6 नहीं है, है ही नहीं, ओके सिविल 7 भी नहीं है, 8 है, किशन, हाँ सिविल 9, नहीं है, 10 10 अंकुर है, आया इधर, कहाँ है, नहीं है, नहीं है, वही तो बोलो नहीं आया वो। हाँ 11 भी नहीं है। ओके मैकेनिकल 1, मैकेनिकल 1 बहुत टाइम से नहीं आ रहा है हर्ष। मैकेनिकल 2, प्रेजेंट मैम। 3, 4, नहीं है। 5, मैकेनिकल 3 विराज, हाँ हाँ 5 प्रेजेंट। ओके मैकेनिकल 6, Present, ma'am. 7, प्रेजेंट मैडम। 8, प्रेजेंट मैम। 9, प्रेजेंट मैम। 10, प्रेजेंट मैम। 11, वो लेफ्ट। तो नहीं है, लेफ्ट, 12, प्रेजेंट मैम। 13, प्रेजेंट मैम। ओके सिद्धार्थ, इसमें y की वैल्यू क्या आएगी, y क्या आएगा, y શું લઈશ તું? આ તારું ઇક્વેશન છે ને my by is equal to sigma b y by, તેમાં y શું આવશે? બોલ
मैडम D option 2. हाँ શું આવશે? मैडम D upon 2 400. B/2 नहीं आएगा, B/2 आएगा. ओके, આજે તારું ડાયમેન્શન છે ને આઉટર B divided by 2 આવશે. 800 by Okay? 2 में हाँ 800 divided by 2. આઉટર તારું 800 by 2 D to 1000 છે ને, આઉટર B is equal to 800. So your y bar is equal to 800. This age. Okay, આ જે છે ને B, તો 800 divided by 2 એટલે તારું આટલું આવશે. અહીંયાથી લઈને આ ડિસ્ટન્સ that is equal to 400. 400. अगर किसी का सिग्मा मैक्स आता है तो बोलना. मैम 1.049 से 1.049. 1.05. 1.05. That okay. और मैडम मिनिमम आएगा 0.2. Yes, 0.2004 यूनिट हाँ, होगा मैडम, न्यूटन पर 0.2 mm स्क्वायर. यस. आ गया सभी का? यस मैडम मैक्सिमम आ गया, मिनिमम निकाल. ओके. आ गया मैम. ओके. ये स्ट्रेस डायग्राम की फिगर ड्रॉ कर लो. सिग्मा मिनिमम यहाँ आएगा 0.2. यस, सिग्मा मिनिमम इज 0.2. सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू 1.049 और 1.05 व्हाटएवर इट इज. ओके, स्ट्रेस डायग्राम के लिए डायग्राम ड्रॉ कर लो.
ओके 9.6 का स्क्रीनशॉट ले लो, पिक्चर ले लो, और ये आपको न्यूमेरिकल करना है कल। और अगर जिसने भी नहीं किया होगा ना, मैं आंसर पूछूंगी, उसको आना चाहिए आंसर। अगर नहीं किया होगा तो मैं उससे कल प्रेजेंट नहीं रखूंगी। अभी सबको कंपलसरी करना है। 9.6 इजी है, सिर्फ सर्कुलर सेक्शन के लिए। एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर दिया है, ओके। सर्कुलर सेक्शन है, सेम है यहाँ पे, लेकिन आपको एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। अगर नहीं समझ आता है तो थोड़ा सा, मतलब जहां तक समझ आए वहां तक करना। अगर नहीं समझ आएगा हम कल करेंगे, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करना। ओके मैडम। ले लिया इसका पिक्चर? ओके चलो तो, यस ओके चलो मिलते हैं कल। गुड बाय। बाय मैडम। बाय।